Our today's class is for 12th class. As you know, we are learning subject geology. Today we will try to understand the sedimentation clock indirect method for determining the age of the earth. We have discussed two different methods, that is the salinity method and indirect method and wow clock indirect method. So today we will try to know about what is sedimentation clock. In this case, the average annual rate of deposition of sediments and the thickness of strata which has been deposited during the whole geological history are to be taken into account. Although this method is full of imperfections and variations from place to place, the age of Cambrian as determined by this method, or we can say by the help of other accurate methods, closely approach each other. Here it is accepted that there is an average rate of deposition of about 1 feet per 705 years. So in other words, we can say that 1 feet of layer, sedimentary layer, it can be have any type of rocks, either shales or slate or limestone or any other. So 1 feet to be calculated in 705 years, or we can say that 1 feet of a layer of one layer which have thickness of 1 feet takes 705 years to get deposited. As such, the beginning of the Cambrian sedimentation come to about 510 million years. So, as per the Cambrian sedimentation, we know almost about 510 million years is the age of the earth by the help of this sedimentation clock method. I will try to repeat it. In this case, as you know, the average annual rate of deposition of sediments. What is the annual rate of deposition of sediments which have thickness of all strata which gets deposited during the whole geological history? They are taken into account. What are the deposition during years or in the geological history that are taken into account? Although this type of method is full of imperfections and variations from place to place, because at one place there is deposition of thickness of some material, whereas at the other place it changes, the thickness of the material changes for the same period. So it varies from place to place. At some place the material gets deposited 2 centimeters. At other places it is deposited 1 centimeter, or other places for the same time. So that is why it is full of variations and imperfections from place to place. क्योंकि जो एवरेज साल भर की एनुअल रेट जो डिपॉजिशन सेडिमेंट्स की होती है, उसकी मोटाई जो उस स्ट्राटा जो डिपॉजिट हो चुका है लेयर, उसकी मोटाई जो है पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में इसको अकाउंट किया जाता है कि किस साल में कितनी मोटाई होगी है ज़मीन की। फिर आगे आगे जब डिपॉजिशन होता रहता है उसको काउंट किया जाता है। मीन्स की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हर एक चीज़ को अच्छी तरह से
काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी कितनी डिपोजिशन हो चुकी, कितने मोटे मोटे लेयर्स हो गए फ्रॉम, अगर स्टार्ट हो गया है किसी पर्टिकुलर ईयर से तो उससे आगे कितने लेयर्स जो है डिपॉजिट हो चुके हैं सेडिमेंट्स के। पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में इनको देखा गया है, इनको अच्छी तरह से काउंट किया गया है। हालांकि ये मेथड जो है इसमें इम्परफेक्शंस और वेरिएशंस इसलिए है कि एक जगह थिकनेस कभी मटेरियल या सेडिमेंटेशन जो डिपॉजिट हो जाए उसकी थिकनेस ज़्यादा मोटी होती है एज कंपेयर टू द अदर प्लेसेस जहां इसी सेडिमेंटेड डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स की मटेरियल की जो थिकनेस है वो इससे कम होती है। सो जहां जहां पे हम देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पे जब हम इसको चेक करेंगे तो जो डिपॉजिट सेडिमेंट्स होते हैं उनकी थिकनेस एक दूसरे के साथ नहीं मिलती जुलती है, इसमें इम्परफेक्शंस और वेरिएशंस आते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं इतना परफेक्ट ये मेथड नहीं है, लेकिन जब हमने देखा है कि इसमें जो एज कैम्ब्रियन में कैम्ब्रियन एज जो पीरियड की है, जियोलॉजिकल पीरियड जो कैम्ब्रियन है, उसमें ये डिटरमाइन किया गया है कि ये मेथड बाकी एक्यूरेट मेथड्स जो है उनके साथ क्लोजली अप्रोच हो जाता है, मिल जाता है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ बाकी मेथड्स जो भी है जैसे सैलिनिटी या वाव क्लॉक मेथड्स है, कैम्ब्रियन पीरियड के जो मेथड्स हैं उनके साथ ये मिलता जुलता है। या सेम जो सैलिनिटी क्लॉक्स के जो कैलकुलेटेड जो डिपॉजिट सेडिमेंट्स के लेयर्स जिनको पहले ही चेक किया गया है कि इनकी थिकनेस के मुताबिक एज कितनी है, अगर उनके साथ कैम्ब्रियन में इसके साथ इसका तवाज़ुन किया जाए तो उनकी एक्यूरेसी को देख के ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हम तस्लीम करते हैं कि एक साल में या एवरेज रेट ऑफ डिपोजिशन जो है, एक साल नहीं बल्कि एवरेज डिपोजिशन रेट ऑफ डिपोजिशन जब देखेंगे हम तो 1 फीट की मोटाई, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हम 1 फीट ले लेंगे, यानी 1 फीट की मोटाई तकरीबन इतने एरिया की मोटाई को 755 साल 755 ईयर्स जो है इसको लगते हैं डिपॉजिट सेडिमेंट्स को डिपॉजिट होने में। इतनी मोटाई, इतना लेयर मोटा होने में, जमीन का 1 फीट का लेयर मोटा होने में या मोटाई होने में कितना टाइम लगता है? 755 साल। इसी के मुताबिक जब हम लेयर्स को देखते रहते हैं तो उसी के मुताबिक हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने साल या कितनी एज है हमारी ज़मीन की एज पर द सेडिमेंटेशन क्लॉक। जब हम देखेंगे 1 फीट एट एन एवरेज डिपोजिशन ऑफ 1 फीट पर 755 ईयर्स, तो कितने मिलियन ईयर्स की हमारी जो ज़मीन है इसकी एज कितनी है। इसके मुताबिक जब देखा गया है कैम्ब्रियन सेडिमेंटेशन जो देखी गई है तो उसके मुताबिक एज पर द सेडिमेंटेशन क्लॉक व्हेन द एवरेज rate of deposition is 1 feet per 755 years, उसके मुताबिक हमारी जो ज़मीन कैम्ब्रियन सेडिमेंटेशन में देखी गई है वो 510 मिलियन ईयर्स रिकॉर्ड की गई है एज इसकी। सो दिस वाज द सेडिमेंटेशन मेथड एज यू हैव गॉट इट ऑलमोस्ट। बेसिकली इट इज़ अ सिंपल मेथड। इसमें हमें इतना ही देखना है कि ज़मीन के लेयर्स जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं कितने मोटे, जब 1 फीट के मोटे सिंपल, जब एवरेज हमने डिपॉजिशन निकाले एवरेज रेट ऑफ डिपॉजिशन में, जब 1 फीट की मोटाई एज पर द सेडिमेंटेशन क्लॉक में 1 फीट की मोटाई तो हम समझेंगे कि 755 साल हो गए हैं। इसी तरह से हम जब चेक करते जाएंगे कि कितने फीट है किसी पर्टिकुलर जियोलॉजिकल रिकॉर्ड के मुताबिक, किसी लेवल से आगे जब हम देखेंगे तो कितने साल या कितने ईयर्स, कितने मिलियन ईयर्स हमारे ज़मीन की जो एज है एज पर द सेडिमेंटेशन क्लॉक मेथड। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेडिमेंटेशन क्लॉक मेथड।